Hello, students. Welcome to Lecture Card. And today we are officially starting with the very first lecture of Environmental, Social, and Governance Principles and Practice. And if I talk about this paper is newly added paper under new syllabus as given by ICSI, and it is a compulsory paper and one of the most important paper if you talk about the current scenario, or if you look at the scams which we have noticed not only in India but in the entire world. So as a student of company secretary, as the bhavi professionals, हमारे देश के भावी प्रोफेशनल्स होने के नाते, you should be well aware about the aspects, and you should be well aware about the ideologies which are there in this subject. Most of the time students are like, अरे गवर्नेंस बोर है, या गवर्नेंस कैसे होगा, अरे ये तो थियरी है, मार्क माई वर्ड्स, इससे प्रैक्टिकल पेपर नहीं है. जैसे आप बोलोगे मैम प्रैक्टिकल पेपर मतलब आपने प्रैक्टिकल बोल दिया इसे. येस, आई एम सेइंग दैट इट इज़ अ प्रैक्टिकल पेपर बिकॉज इट हैज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच. कैसे मैम? अगर किसी ने स्कैम किया, इफ somebody has done some kind of embezzlement, or if there is any corruption or scam going on in the company or organization, then obviously it is a practical thing, and the entire scenario has to be observed or has to be tackled with a practical approach. So this is the most practical thing. आप किसी को मार रहे हो तो ये तो actually हो रहा है ना, इससे ज़्यादा verb और क्या होगा, correct? So coming back to the intricacies of the subject, now most of the time what I have seen the student talking about when they talk about particularly about this word governance, गवर्नेंस को कंप्लायंस कह देते हैं यार. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर गवर्नेंस और कंप्लायंस एक होते तो कंप्लायंस मैनेजमेंट को एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होती थी? सो गवर्नेंस is not equivalent to compliance management, or governance is not, cannot be synonymously used with compliance or due diligence. So if you are committing this mistake, this video is definitely for you, because in today's video we will be discussing more about the governance and how and why we have the the principles underlining the entire concept of governance. It is a very beautiful subject, and mark my words, मेरे साथ पढ़ते चलो, तुम्हें प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से. दिस इज़ माई गारंटी. आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू फेच good marks exemption in your this particular paper. So starting with the postmortem of the subject, I have also discussed the same in my earlier video as well, but today I'll tell you a brief about the subject. So basically the subject is divided into three parts: environmental, social, and governance, principles and practice. Now the entire scheme of the subject is the governance and sustainability wala part constitutes 65 marks. Now 17 chapters are there in this particular 65 for the 65 marks. But if you talk about the other two parts, chapter number 18 is for 20 marks. रिस्क मैनेजमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ चलो बिजनेस करने में क्या रिस्क होता है, ये ऐसा वाला रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं हम. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग है. जिसको समझ गया, जिसको नहीं समझा, जो बहकावे में है, जिसको सही नॉलेज नहीं पास ऑन करी गई है, चाहे फेलो स्टूडेंट्स के द्वारा या उन टीचर्स के द्वारा जो खुद रिसर्च करके नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट कुछ तो भी लगेगा. एंड सेम गोज विद एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. नाउ आई अज्यूम कि आज का स्टूडेंट is little bit confident and has little bit of knowledge about the environment and sustainability reporting because of the awareness programs, because of the various speeches given by the political leaders. So you have little bit of orientation about this part of 15 marks. जहाँ पे गच्चा खाता है कोई भी, जहाँ पे गड़बड़ होती है, that is when we talk about governance per se. Most of the time, as I have stated earlier in this video as well, गवर्नेंस को कंप्लायंस नहीं समझना है.
I mean, governance is something which has been practiced, which has been followed since time immemorial. आप मनुस्मृति की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट महाभारत, इफ़ यू टॉक अबाउट कौटिल्य अर्थशास्त्र, वहाँ पे भी हमें गवर्नेंस देखने को मिलता है. एंड द गवर्नेंस सिस्टम विच वी हैव टुडे इन टुडेज सिनेरियो इज, आई मीन, borrowed, or the foundation has been given by these mythological books, and from there we have developed a system which can also be called as statescraft. आई मीन, जो पहले के राजा हुआ करते थे, उनके जो मंत्रीगण हुआ करते थे, वो उन्हें राज्य को चलाने की सूझबूझ दिया करते थे. वो उनको बताते थे कि हाउ यू आर सपोज टू रन अ स्टेट. स्टेट यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर राज्य स्टेट की बात नहीं कर रहे. स्टेट हम यहाँ पे कह रहे हैं जो उन राजाओं का एम्पायर हुआ करता था, कि हाउ यू आर सपोज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड, बैड, राइट एंड रॉन्ग. How you should differentiate between good, bad, right and wrong. So now because we have officially commenced with the lecture, so you should be ready with the pen, paper, highlighter, everything which I have mentioned earlier, right? तो क्या होता था गवर्नेंस? तो चलो, आई डोंट वांट टू dwell into difficult definitions. Rather, I am starting with a simple demarcation. तो हम डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? डिमार्केशन देखेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, अभी नहीं बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, है आराम से बात करेंगे. वी विल रैदर टॉक अबाउट द डिमार्केशन. नाउ डिमार्केशन ऑफ व्हाट? डिमार्केशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड, बैड, right and wrong. We are demarcating between good, bad, right and wrong. मैम, ये हम तो ये वर्ड्स को सिनोनिमसली यूज करते हैं. वी ऑफन यूज the bad and wrong, good and right synonymously. No, but here when we talk about governance, we are not supposed to talk about these words, or the interpretation of these words should not be done synonymously. Rather, there is an objective definition given, or objective aspect given to each and every word which we will be discussing here. So now let's take one example. I love eating Maggie. I love Maggie. बहुत मज़ा आता है मुझे. It feels so good when I have a packet of Maggie. But whether this is always a right thing for you to do, whether it is always a right thing for you to do. डेली मैगी खाना अच्छा है? हेल्थ का क्या होगा? So undoubtedly it tastes good to you. Whether it is a right thing for you to do? No. Now can you see the difference between these two words? हर वो चीज़ जो हमें करने में अच्छी लगती है, वो हमारे लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है. I am repeating it once again. The things, the products which we feel good at the time of their consumption doesn't necessarily mean that they are also always the right thing for us to do. Correct? In the same manner, when I am saying that if I am sick, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बीमार हूँ, ठीक है, then the right thing for me to do is to consume my medicines on time. सही है, ये सही चीज़ है ना मेरे करने के लिए, कि मैं जब दवाई खाऊंगी तभी मैं ठीक होंगी. बट वेदर इट टेस्ट्स गुड, दवाई खाने में मज़ा तो किसी को नहीं आता एक्सेप्ट कुछ मीठी दवाइयाँ छोड़ के. सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इट डजंट टेस्ट गुड टू मी, द टेस्ट इज बैड, बट इट इज़ अ राइट थिंग फॉर मी टू डू. नाउ आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? ये चारों का मतलब अलग अलग है. So when we say governance, now this is how we should start with the meaning of governance. Governance is something which tells the administrators, which tells the executors that there is indeed a difference between good, bad, right and wrong. Please note it down. I'm waiting for you. Please note it down.
because this is important, right? Done? So, when I am saying that the authorities or the executors are using the principles of governance at the time of deciding or at the time of demarcating between good, bad, right, and wrong, what they are doing, they are applying the principles of governance in order to bring maximum benefits for to the society, in order to bring maximum benefits, in order to just bring the prosperity, or if you talk about the goodness in the society. If you want to inculcate that, you need to have governance systems in place, correct? So अगर एक सिंपल सी डिक्शनरी मीनिंग अगर हम लिखें, नाउ यू शुड बी रेडी विद योर पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, वॉट एवर, सब रेडी रखना है, बिकॉज कंटिन्यूसली नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स हियर. एक तो ये जो रनिंग नोट्स हम बना रहे हैं, साथ में वी हैव the notes which undoubtedly are running notes, but ये already लिखे हैं because we will not be getting so much of time. So this all will be sent to you, this all will be provided to you, and ये आपको साथ में लिखते जाना है. Again, when we are talking about the study material, I have come up with entirely new idea कि मैं तुम्हारे स्टडी मैट को ही नोट्स में कन्वर्ट करा दूंगी. यस, मैं आपके स्टडी नोट्स को नोट्स में कन्वर्ट करा दूंगी, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि कब तुम्हारे खुद के नोट्स भी बन गए एंड यू हैव कवर्ड द एंटायर स्टडी मटेरियल एज वेल. कुछ नहीं छोड़ेंगे हम इसमें, हम इसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो यू हैव टू बी ऑन द टोज व्हेन यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है? और ईच एंड एवरी लेक्चर एज फार एज ESG इज कंसर्न, ठीक है? चलो, सो स्टार्टिंग विद the dictionary meaning of the word governance. Write it down. The action or manner. So when I am saying action, what I mean, consciously doing something or omitting to do something. So now see, मेरी कोई जिम्मेदारी थी, मैंने उसे नहीं किया, दिस इज ओमिशन. मुझे कुछ नहीं करना था और मैंने किया, दिस इज कमीशन, राइट? सो कमीशन एंड ओमिशन बोथ वेज में हम यहाँ बात करते हैं. और सो राइट इट डाउन, द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग. वाह, कितना सुंदर लिख रही हूँ ना. ऑफ गवर्निंग अ स्टेट or organization. Now this is the simplest meaning assigned to the concept which is governance. Simplest meaning, कोई एक तरीका, कोई एक एक्शन किसी चीज़ को मैनेज करने का, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, किसी भी चीज़ को हैंडल करने का, उसे गवर्न करने का कोई भी जरिया या तरीका इज गवर्नेंस. दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग विच कैन बी असाइंड टू द वर्ड गवर्नेंस. अच्छा, लेकिन जब हम इसी गवर्नेंस की के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं एक कंपनी के रिलेशन में, ठीक है, अभी हमारा मेन सिनेरियो, होल पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम किस तरह से गवर्नेंस के प्रिंसिपल को बिजनेस में अप्लाई करते हैं. सी नाउ व्हेन द गवर्नेंस सिस्टम्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय गवर्नमेंट, देन दे आर थिंकिंग अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, दे आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, दे आर थिंकिंग अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स and people residing in a society, right, who are part of the society. But when we are talking about a business has to take care of the shareholders or the stakeholders or the government or the various persons who are directly or indirectly associated with the company. Hence we use the word stakeholder. Correct? Stakeholder is a very wide word. अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ है, देखो, अभी आप सिर्फ शेयर होल्डर लिख दोगे अपने आंसर में तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टेक होल्डर. तो व्हेन अ बिजनेस इज कंडक्टेड, जब कोई बिजनेस होता है तो वो बिजनेस में हमें प्रॉफिट भी देखना है, प्लैनेट भी देखना है, पीपल भी देखना है, सभी कुछ देखना है. अरे हमें प्लैनेट भी देखना है, हमें पीपल भी देखना है, हमें प्रॉफिट भी देखना है, तो ये तीनों को ध्यान में रख के चलना है ना.
प्रॉफिट देखेंगे और पीपल को छोड़ देंगे तो बनेगी बात? नहीं बनेगी। पीपल देखेंगे, प्रॉफिट छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। बिजनेस कैसे चलेगा? पीपल और प्रॉफिट देखा पर प्लैनेट को छोड़ दिया तो जिस जगह में रह रहे हैं क्या उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? एक दिन नेचर अपना बदला लेगी और सब कुछ खत्म, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग्स खत्म, आपका बनाया हुआ बिजनेस खत्म। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में वेरियस पीपल, वेरियस I mean divisions are there who are actually responsible for the governance principles or the governance systems. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, देन देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है। तो क्या किसी भी एक एस्पेक्ट को आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिजनेस, तो जब कोई बिजनेस कैरी आउट किया जाता है, देन देयर आर सर्टेन गवर्नेंस प्रिंसिपल्स विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग that how the pathway of business should be, कैसा होना चाहिए एक बिजनेस का की आइडियोलॉजी। लाइक हम टाटास की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? हम ही नहीं, पूरी दुनिया क्यों इज्जत करती है टाटास को? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एथिकल बेस एंड बैकग्राउंड, जिसके कारण हम उनकी नींव पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। Because they are ethically oriented company. When they think about themselves, they are also thinking about the environment at large. Correct? And hence, the entire subject, environmental, social and governance. Environmental, social and governance. Environment को देखना है, environmental related aspects देखने हैं, social देखना है, society को देखना है, and उसके साथ साथ बिजनेस भी चल रहा है। एंड देन व्हाट आर द गवर्नेंस प्रिंसिपल्स विच वी आर फॉलोइंग। डन, यहाँ तक कंप्लीट है, सब दिमाग में सॉर्टेड है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हम अब इस पे एडिशंस करते जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ बेस बिल्डिंग चल रही है अभी। दिस लेक्चर इज टोटली अबाउट द बेस बिल्डिंग एंड अ ब्रीफ किक स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एज वेल। करेक्ट? चलो, तो फिर जैसा कि चैप्टर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। अभी जनरली क्या होता है, गवर्नेंस वर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं कंप्लायंस। ये गलत है, पहले भी बताया। गवर्नेंस का मतलब स्टैंड अलोन, अभी हमने लिखा द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लो, चाहे स्टेट में यूज़ कर लो, बट इफ़ आई एड वन वर्ड कॉरपोरेट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नेंस, अब क्या हो गया? मीनिंग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द मीनिंग हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दिस वन वर्ड कॉरपोरेट। हमने क्या लगा दिया गवर्नेंस के आगे? हमने कॉरपोरेट ये वर्ड लगा दिया। अब इससे चेंज क्या आया? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स, अबाउट द एक्शंस, अबाउट द मैनर्स, अबाउट द आइडियोलॉजीज विच पर्टिकुलरली अ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो। तो जब मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहती हूँ तो मैं सिर्फ उस गवर्नेंस की बात कर रही हूँ विच इज़ एप्लीकेबल और विच इज़ रेलेवेंट फॉर अ कॉर्पोरेट बॉडी। इज इट क्लियर? अब यहाँ से गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में हमने फ़र्क किया। गवर्नेंस इज़ अ वेरी वाइड वर्ड जो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे गवर्नेंस आप स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है, दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज इन एन एथिकल मैनर। तो क्या गवर्नेंस आप पे एप्लीकेबल नहीं है? बट वेन एवर आई से गवर्नेंस वर्ड तो स्टूडेंट्स आर लाइक हाँ जो कॉर्पोरेट एंटिटी पे लगता है। गलत। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए स्पेसिफिकली लगता है, बट गवर्नेंस इज अ वेरी ओपन एंडेड वर्ड which has various and multifaceted meanings in various contexts. Correct? Chalo, so if we talk about the corporate governance, the phrase corporate governance describes the framework of rules, relationships, systems, and processes. Now, because this study material, I have converted this study material in the notes. तो अब ये तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे और तुम्हारा स्टडी मैट भी कवर हो जाएगा। तो तुम्हें ये सब बॉक्स बनाते चलना है, जहाँ जहाँ पे भी एडिशन मैंने कुछ डाला है वो आपको लिखना होगा। ठीक है?
So be very sure that you have all the resources with you. ठीक है. So the phrase corporate governance describes the framework of rules, relationships, systems and processes within and by which, देखो क्या लिखा है, within and by which authority is exercised and controlled within corporations. तो अगर एक बॉडी कॉरपोरेट है, उसके अंदर कैसे गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब सही तरीके से काम किया जाता है. अगर सिंपल एक बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. सबसे सही तरीके से किसी चीज़ को करना, सबसे बेहतर तरीके से करना. अब तुम ये कह सकते हो कि मैम परफेक्ट कर सकते हैं क्या? तो देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट लाइक परफेक्ट. हम परफेक्शन को एम करते हैं, वी गो टूवर्ड्स परफेक्शन, वी थ्राइव टू गेन परफेक्शन. बट किसी भी चीज़ में चेंजेस लाना या किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट्स करना, क्या ये असंभव है? ऐसा नहीं है. हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. It encompasses the mechanism by which companies and those in control are held to account. अब ये those in control मतलब कौन? जो उस कंपनी को चला रहे हैं. तो हम किस तरह से कंपनी को और उन लोगों को जो कंपनी को चलाते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो सिस्टम है, वो हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस बताता है. सिर्फ गवर्नेंस नहीं, ये हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस बताता है कि हाउ अ कंपनी रन्स, हाउ अ कंपनी वर्क्स. ठीक है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. देखो क्या लिखा है, ये ICSI की दी हुई डेफिनेशन है. तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस डेफिनेशन बिकॉज वी ऑल्सो आर समवेयर पार्ट and are considered as the professionals who take care of the compliance and governance systems and practices. हम भी उस कहीं ना कहीं उस एक पूरे ग्रुप का भाग होते हैं. ठीक है. when we have board of directors, when we have other agents working for the company, so we also are professionals who are thinking about the best development and the best practices which a company should follow. Correct. The corporate governance is the application of best management practices, compliance of laws. अब देखो क्या लिखा है. तो जब compliance of law इसका एक पार्ट है, तो ये और governance synonymous कैसे हो सकते हैं? So most of the time this, I mean, I am requesting everyone who is watching this video, don't commit such mistake. ऐसा मत करो. बिकॉज ये मेरे लिए नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गलत है. गवर्नेंस अलग है, कंप्लायंस मैनेजमेंट अलग है. कंप्लायंस एक पार्ट हो सकता है गवर्नेंस का, अनडाउटेडली यस, इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट. सो व्हेन वी से ट्रू लेटर एंड स्पिरिट मतलब जैसा लिखा है वैसा फॉलो भी किया जाता है. और कई बार जो कुछ ऐसा है जो हमें प्लेन आइज से नहीं दिख रहा है बट जो फॉलो होना चाहिए वो भी फॉलो होता है. तो मतलब हमें न केवल वो देखना है जो लिखा है, बल्कि जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी सोल है, उस लॉ की, उस रूल की, उस रेगुलेशन की, दोनों एस्पेक्ट में वो फॉलो होना चाहिए. तब कॉरपोरेट गवर्नेंस सही मायनों में फॉलो किया जाता है. ठीक है. दिस इज कॉरपोरेट गवर्नेंस. And adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility. Now, what is a social responsibility? मुझे ये पैनकेक बहुत पसंद है. ठीक है. मैंने पैनकेक खाया. ठीक. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस हंगर एंड एवरीथिंग. तो मुझे पता है भाई, इफ़ आई एम स्टेइंग अलोन और मुझे अपना पेट भरना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे टूवर्ड्स. मैंने पैनकेक खाया और उसका जो ये था, प्लेट था, उसको मैंने इस रास्ते में फेंक दिया. अभी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि मैं उसे डस्टबिन में डालूं? है ना. सो अगर मैं खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इफ़ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई एनवायरनमेंट एज वेल. आई हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी इन विच आई लिव. दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वैसे ही जैसे एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द कॉर्पोरेट बॉडी इज ऑल्सो आंसरेबल, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सोसाइटी. So a corporate, when I'm talking about a body corporate undoubtedly is responsible towards the directors, towards the shareholders who have put in so much of money, believing that मेरा पैसा कभी मुझे वापस मिलेगा, बढ़ के, डबल होके, ट्रिपल होके, whatever.
तो जब एक बॉडी कॉर्पोरेट इन सब का ध्यान रखती है तो सोसाइटी का ध्यान क्यों नहीं रख रही है? इन ऑर्डर टू गिव मोर एंड मोर मनी टू माई शेयर होल्डर्स आई एम डूइंग एमिशन लाइक एनीथिंग। बहुत एमिशन कर दिया एंड अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या मिला? एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया। तो वेदर इट इज अ राइट थिंग फॉर मी टू डू? नो। So I have certain responsibilities towards my society. I have some responsibilities towards the environment and towards anybody who is part of the environment. Environment सिर्फ बादल बिजली बारिश नहीं होता है. I'm making it very clear. Environment is something with which I am continuously connected. जो मेरे आजू बाजू का जो भी हो रहा है मेरे आजू बाजू, this is my environment. And I am also responsible towards my environment. I am responsible towards the society in which we live. सो जैसे एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वैसे ही एक बॉडी कॉर्पोरेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। करेक्ट? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं हुआ है। क्या यूज हुआ है? स्टेक होल्डर वर्ड यूज हुआ है। स्टेक होल्डर मतलब वो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड है। सो एवरीबडी, एनीबडी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द organization or the business or the body corporate will be termed as a stakeholder. Is it clear? Moving ahead, corporate governance means to steer an organization in the desired direction by determining ways to take effective strategic decisions. It also deals with the accountability of the individuals through a mechanism which reduces the principal agent problem in the organization. Now, these two words, principal and agent, इनका relevance है when we will start with the agency theory. You don't believe me? रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। So there is a theory called as agency theory. इसमें हमें इसका relevance पता चलेगा that why these two words principal and agent has been used here. क्यों ये use हुआ ये तब पता चलेगा, पर तब तक के लिए वापस आ जाते हैं फर्स्ट पन्ने पर। तो यहाँ पे कुछ important points हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहला डील्स विद द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स मतलब दोज हु आर टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, दोज हु आर द ऑफिस बेयरर्स, दोज हु आर द ऑफिस इंचार्ज। I mean the person, the individual who is taking decision on behalf of a body corporate, and because of his decision, because of his ideology, if the company, if the body corporate has to face some adversities, or if the society has to face some adversities, or there is some harm to the individuals living in the society, then this person is accountable for his or her decision. तो आप अपने decisions के लिए क्या हैं? खुद accountable हैं। Clear? Through a mechanism which reduces the principal agent problem in the organization. Principal agent problem यहाँ ठहरा के रखना, when we will go read ahead, जहाँ पे आगे ये syllabus में आएगा तब हम इसको ज़रूर discussion करेंगे। तो corporate governance has a broad scope. It includes both social and institutional aspect. Corporate governance encourages a trustworthy, highlighted, trustworthy, moral as well as ethical environment. Now see, how can you score more marks in your CS professional paper? Knowledge तो हमें आ ही रहा है, हम marks ज़्यादा कैसे score कर सकते हैं? Now these are some words which can be called as terminologies or the jargons जिनका कोई importance है, इसीलिए वो यहाँ use हुए हैं। Trustworthy, moral as well as ethical environment. Now जब हम इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, नॉर्मल पार्लेंस में बात करते हैं तो हम एथिकल और मॉरल को एक बेस पे रख देते हैं। करते हैं ये गलती। हम क्या करते हैं? मॉरल को भी वैसा ही रख देते हैं, एथिकल को भी वैसा ही रख देते हैं। हाँ, ये तो मॉरल प्रिंसिपल है, ये तो एथिकल प्रिंसिपल है। गलत। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, देन मॉरल बिहेवियर, मॉरल आइडियोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट एंड एथिकल इज समथिंग डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। एंड योर होमवर्क इज टू रिसर्च ऑन दीज टू वर्ड्स। मैम आप ऐसा होमवर्क दे रही हूँ? हाँ मैं दे रही हूँ। एंड मार्क माई वर्ड्स, वंस यू डू दिस होमवर्क यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट बोल क्या रहा है, वॉट इज बेसिकली देयर इन दिस सब्जेक्ट। ये तो आपको तब समझेगा। सो होमवर्क नंबर 1,
पढ़ के देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड एथिकल। क्या है मॉरल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स व्हाट एंड एथिकल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स व्हाट। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी भी, पर तब तक आपकी यह होमवर्क है कि आपको इसको कंप्लीट करके रखना है। In other words, the heart of corporate governance is transparency, disclosure, accountability and integrity. अब ये 4 कीवर्ड्स हैं जो अगर आपने अपने आंसर में नहीं यूज़ किए तो आपके नंबर्स कट सकते हैं। बिकॉज even if individuals, humans are checking the paper or if AI is checking the paper, ये कीवर्ड्स हैं, ये 4 पिलर्स की तरह एक्ट करते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर एंड यू आर सपोज टू यूज दीज 4 वर्ड्स एनी हाउ। ठीक है, मूविंग अहेड, इट इज टू बी बोर्न इन माइंड दैट मियर लेजिस्लेशन डज नॉट इंश्योर गुड गवर्नेंस। क्या बात लिखी है, यू आर मेकिंग लॉज, आपने लॉ बना दिया और आपने सिर्फ ये कह दिया कि हाँ 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 चलो भैया आपसे लॉ है और अब गवर्नेंस हो गया। गलत, मियर फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज नॉट सफिशिएंट। खाली लॉ बना देने से कुछ नहीं होता है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। सो मियर फ्रेमिंग ऑफ लॉज विल नॉट गिव यू एनीथिंग, मियर लेजिस्लेशन डज नॉट प्रूव फ्रूटफुल टू यू, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। अब देखो एक वर्ड आया, these ethical business practices. तो business practices मतलब the legislations which have been framed, the laws which have been framed by the government, by the authorities, those laws, those legislations have also to be followed in order to have the best system of corporate practices. Are you getting it? Even if there is no legislation, कोई लॉ उस चीज़ पे बना ही नहीं है, so if there is no law तो क्या आप कुछ भी करोगे क्या? Mere non-existence of law gives you immense power to snatch away right of others. नहीं है ना, ये हक हमें तो नहीं मिला है। As humans we don't have this right. ठीक है, हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैम एनिमल किंगडम में ऐसा चलता है, कोई किसी को मार के खा रहा है, हाँ तो वो एनिमल किंगडम है, हम ह्यूमन से ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो रीजनिंग है। IPR के लेक्चर में भी मैं आपको ये चीज़ पढ़ाती हूँ, IPR में भी सेम चीज़ कहती हूँ। हमें भगवान ने यही तो क्षमता दी है रीजनिंग की, विच डिफ्रेंशिएट्स अ ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल। तो ये फ़र्क अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थू है हमारी इंसानी जीवन पे। ठीक है, corporate governance is managing, monitoring and overseeing various corporate systems in such a manner that corporate reliability, आप पे भरोसा होता है, आप स्टेक होल्डर्स को, कंज्यूमर्स को आप पे भरोसा है when they are using your product. A shareholder has a faith on you when he or she is parting with his or her income, एंड वो इनकम का पार्ट वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको देते हैं, तो दे हैव सम काइंड ऑफ फेथ ऑन यू। वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप को आप कैसे तोड़ सकते हो? वो फिड्यूशरी जो भरोसा है, फिड्यूशरी मीन्स ट्रस्ट वर्दी, वो ट्रस्ट वर्दी भरोसा जो रिलायंस आप पे प्लेस किया जा रहा है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसे आप कैसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो, राइट? सो द रिलायबिलिटी, द रेपुटेशन आर नॉट पुट एट स्टेक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिलर्स ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, बार बार ये वर्ड आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, बार बार आ रहा है। सो यू आर सपोज टू यूज दिस वर्ड्स एंड मेरा सजेशन है जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है तुरंत एक बार देखो और अपनी कॉपी में लिख लो। मेरा सजेशन ये है, नाउ इट्स अप टू यू दैट हाउ यू एक्सप्लोर द वीडियोज एंड हाउ यू एक्सप्लोर द लेक्चर्स। पास तुम्हें होना है ना, मैं तो हो गई हूँ पास। In action satisfying accountability and responsibility towards the stakeholders. Now अगर आपने इसके बदले यहाँ शेयर होल्डर वर्ड यूज़ किया, आंसर गलत हो गया, आंसर अधूरा हो गया। स्टेक होल्डर इज द वर्ड विच यू आर सपोज टू यूज हियर। ठीक है, the long-term performance of a corporate is judged by a wide constituency of stakeholders. Various stakeholders affected by the government's practices of the company include. अब ये एक पैरा में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इजी भाषा में इस चीज़ को लिख के दे दूँ। बहुत गंदा बॉक्स बनाया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। एक इजी वे में मैं आपको ये बना के दे दूँ। अब क्या क्या कौन कौन इससे अफेक्टेड होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। बिजनेस थ्राइव इफ अ सॉलिड कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स गवर्न्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है? All those who are internally as well as externally impacted.
अभी मैंने बोला था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला एक रेफरेंस दिया था आपको। तो हम क्या क्या चीज़ों से अफेक्टेड हो रहे हैं, नॉट ओनली इंटरनल बट ऑल्सो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सो अगेन स्टेक होल्डर इज अ वेरी वाइड, जस्ट अ सेकेंड, इज़ अ वेरी वाइड वर्ड, जहाँ पे हम उस एनवायरनमेंट में, या स्टेक होल्डर ये जो वर्ड है इसमें हम बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल का भेद नहीं रह जाता। एवरीबडी इज whoever is directly or indirectly connected is an important part for the organization. बात खत्म। Usually, the system of corporate governance contains the measures, rules, and responsibilities of internal stakeholders on how to conduct fair and honest business procedures. Some of the best practices to include are making it comprehensive. Comprehensive word यहाँ पे मतलब है all inclusive. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल इंक्लूसिव, जिसमें बहुत कुछ कंटेन्ड है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव। एंड ईजिली एक्सेसिबल, अब इतना डिफ़िकल्ट है या इतना अनअप्रोचेबल है कि पता ही नहीं चल पा रहा है ये सिस्टम कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, तो भी ये गलत है। इसीलिए क्या बोला गया है, ईजिली एक्सेसिबल एंड केयरफुली प्लानिंग इट आउट एंड बेस्ड ऑन कंपनी ब्रांडिंग। और आपको ये भी देखना है, अच्छा ये गलती नहीं करनी है, वो ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, मैं भी ये कर लूँ, क्यों कर लूँ? सो देयर आर मल्टीपल multifaceted these business practices which are followed by various companies as per their own needs and requirements. Even the legislation also mandates the same. भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ और प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे, पब्लिक को कुछ और होंगे, लिस्टेड को कुछ और होंगे, एनपीओ को कुछ और होंगे, एनजीओ को कुछ और होंगे, एंड सो फोर्थ. So whether you can standardize between the various corporate governance practices कि ये फॉलो कर रहा है तो हम भी कर ले, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उसे कंपनी के ब्रांडिंग, कंपनी के बेसिस पे उसकी केयरफुल प्लानिंग लगती है, करनी पड़ेगी। This usually includes your core values and vision, confidentiality procedures, community involvement, etc. So it is not etc, it is etc. So please pronounce it correctly. The committee assigned to draft this must write it in such a way that stakeholders will easily understand it. So the main crux of the matter is कौन कौन अफेक्टेड होता है, तो दोज हु आर पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट वो तो होंगे ही, ऑल्सो दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो भी होंगे, एंड देयर हैज़ टू बी अ केयरफुल ड्राफ्टिंग ऑफ द एंटायर document or the legislation in order to fetch the best out of the best practices which we follow in the name of corporate governance, right? In the next lecture, we will start with the advantages of corporate governance. That's all for today. Thank you. I mean, today मतलब क्लास ख़त्म नहीं हो रही है, आपको आगे का लेक्चर भी देखना है। एक छोटा सा लेक्चर है, ओनली 40 मिनट्स का, तो ये आपके लिए तो ऐसे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे अपडेट्स के साथ। होमवर्क क्या था, मॉरल और एथिकल के बीच का फ़र्क देखना है। यू आर सपोज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड एथिकल फ्रॉम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बाय, थैंक यू। लेट मी हैव अ कप ऑफ टी, बहुत सर दुख रहा है। थैंक यू।